کلیسیاؤں میں سے تیسری کلیسیا ہے پرگمن کی کلیسیا. ایک اور بات سن لیجئے، ہم ان 7 کلیسیاؤں میں سے سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس کس بات میں تعریف کی ان کی، اور اگر وہ خوبیاں آپ میں پائی جاتی ہوں تو خوش ہوں. یہ 7 کلیسیائیں افسس، جن میں پہلا نام تھا، دوسرا سمرنا اور تیسرا آج ہم سیکھ رہے ہیں پرگمن، اور 4 اور ہیں. یہ 7 کلیسیاؤں میں یسوع مسیح نے پہلے اپنی اس کلیسیا کی خوبیاں بیان کی ہیں. تم میں یہ اچھی باتیں پائی جاتی ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ سنیں کسی کلیسیا کی خوبیاں تو اپنے ساتھ موازنہ کریں کہ کیا یہ خوبی آپ میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر فکر کریں اس بات کی. وہ خوبی اپنے آپ میں لائیں. اور پھر جن باتوں سے شکایت ہے، شکایت بھی ہے 7 کلیسیوں میں سے 6 میں سے، اگر کسی کلیسیا سے شکایت ہے اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا یہ کمی، کیا یہ شکایت آپ سے ہی ہے، اور اگر ہے تو اسے ختم کریں اور غالب آئیں. اور 7 کلیسیاؤں کے پیغام میں آخر میں یسوع نے کہا ہے جو غالب آئے. افسس کی کلیسیا کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا جو غالب آئے، اور پھر اس کے لیے برکت کا اعلان کیا. پھر سمرنا کی کلیسیا کے لیے کہا کہ جو غالب آئے، پھر برکت کا اعلان کیا. اور اس کلیسیا پرگمن کے لیے بھی ہم سیکھیں گے جو غالب آئے اس کے لیے برکت کا اعلان ہے. تو یاد رکھیے، اگر خوبیاں ہیں اپنا لیں، اگر شکایات ہیں کلیسیاؤں سے ان کو نکال دیں اور غالب آئیں. ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا. تو پھر آج کا کلام شروع کیا جائے. کتنے ہیں جو سننے کے لیے تیار ہیں؟ اب سب تیار ہیں؟ ذرا زوردار تالیاں بجا کے بتائیے کہ اب تیار ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ دیکھ، تو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا جو یسوع کا شاگرد تھا 12 رسول میں سے ایک، اس سے کہا کہ پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لے. پرگمن ایک شہر تھا جو موجودہ ترکی کے ملک میں پایا جاتا تھا، اور ابھی وہاں پر ایک اور شہر آباد ہو چکا ہے، کیونکہ شہر ٹوٹتے رہتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں زلزلوں سے یا کسی وجہ سے اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے اور پھر نیا شہر آباد ہو جاتا ہے. یہ شہر ایک پہاڑ کے اوپر ہل اسٹیشن تھا یہ، اور برباد ہو گیا. وہاں ایک اور شہر اب آباد ہو چکا ہے. پرگمن شہر صوبہ آسیا، روم کا صوبہ آسیا جو تھا اس کا کیپٹل تھا، اور یہاں 4 بڑے مندر تھے. نہایت توجہ سے سنیے، یہاں پر 4 بڑے مندر تھے، اور چاروں مندر 4 دیوتاؤں کے نام سے تھے، دیویوں اور دیوتاؤں کے نام سے تھے. میں اب دیوتاؤں اور دیویوں کے نام تو نہیں بتاؤں گا، لیکن 4 بڑے مندر تھے جہاں پر 4 قسم کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی. پہلا مندر جو تھا، وہاں جو دیوتا کی پرستش ہوتی تھی، وہاں اس کا مجسمہ رکھا ہوا تھا، اور وہ تھا دانش اور فہم کا دیوتا. اور ان کا ایمان یہ ہوتا تھا کہ اگر دانش چاہیے، فہم چاہیے، عقل چاہیے تو اس دیوی اور اس دیوتا کے سامنے گھٹنے ٹیکے. سلیمان نے کس سے دانش مانگی تھی؟ کس سے؟ خدا سے. اور یہ دانش فہم مانگنے کے لیے بدھ کے پاس جاتے تھے. پھر ایک اور دیوی تھی ان کی، اور وہ شفا دینے کی دیوی تھی، اور اس کا ایک اسٹیچو تھا، اور اگر شفا چاہیے تو اس کے آگے. ہندوؤں میں ابھی بھی کوئی لاکھوں کے قریب 30 لاکھ کے قریب دیوی دیوتا ہیں، اور وہ ہر ایک کسی ایک مقصد کے لیے ہے. مثال کے طور پر آپ کو شفا چاہیے تو پہلے تو ڈھونڈیں گے کس دیوتا کے سامنے آپ جائیں گے، کس دیوی کے آگے سجدہ کریں گے، پہلے تو تلاش کریں. ٹھیک ہے؟ اور جب مل جائے تو پھر کر لیں. تو پھر یاد رکھیے کہ اسی طرح سے یہاں بھی 4 دیوی دیوتا تھے، اور
کسی خادم نے کہا کہ ہندوؤں کے تو دیوتاؤں کے بفے ہیں. ہاں جاوید صاحب، دیوتاؤں کے ان کے دیویوں کے بفے ہیں، آپ کو چننا پڑے گا کس کے سامنے اپنی درخواست لے کے جائیں. تو دوسرا ان کا مندر تھا، وہاں ایک اور دیوی تھی. پہلے اسی کا ذکر کر لیتے ہیں. اور یہ شفا دینے کی دیوی، اس کا ایک نشان تھا کہ چھڑی کے اوپر، ایک چھڑی کے اوپر سانپ. آج بھی یونانی ادویات جو ہیں ان کے اوپر، بہت سی دوائیوں کے اوپر اس کا نشان ہے چھڑی کے اوپر سانپ. یہ اس دیوی کا نشان تھا. شفا کے لیے وہاں جاتے تھے. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. آج سے 2000 سال پہلے یسوع صلیب پر ہوا، اس نے اپنا لہو بہایا اور اس کے مار کھانے سے آپ اور میں پہلے ہی شفا پا چکے ہیں. اگر آج کوئی بیمار ہے تو وہ قبول کرے کہ یسوع تو نے شفا کا بندوبست میرے لیے پہلے ہی کر دیا ہے اور شفا کو رسیو کرے. ہاللیلویا. ایک اور دیوی، اور اس بلکہ دیوتا، اس کو کہتے تھے تمام دیوی دیوتاؤں کا باپ، اور اس کا نام تھا زیوس. اور یہ مے نوشی اور شراب خانوں کا دیوتا تھا. اور سب سے بڑھ کر، میں نے جیسے پچھلے سمرنا کے بارے میں بھی بتایا، پرگمن بھی ایک بڑا شہر ہے اور یہاں بھی روم کی حکومت ہے. اور جیسے ابھی میں نے بیان کیا کہ صوبہ آسیا کا یہ کیپٹل ہے. یہاں اور مندر بھی تھے جہاں پر کیسر کے اسٹیچو رکھے ہوئے تھے. کیسر روم کا بادشاہ ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح پیدا ہونے کو تھا تو مقدسہ مریم اور یوسف کو کیا کہا گیا؟ اٹھ، اپنے نام لکھوانے کے لیے اپنے شہر کو چل. اور یہ کس کی طرف سے فرمان جاری ہوا تھا؟ کیسر اوگسطس کی طرف سے. اب کیسر کا نام معلوم نہیں ہے کہ پرگمن کے دور میں کون سا کیسر تھا، لیکن کیسر بادشاہ کا ٹائٹل ہوتا تھا. اور کیسر کے اسٹیچو مندروں میں رکھے ہوئے تھے. اور سب کے لیے قانوناً روم کی طرف سے، عدالت حکومت کی طرف سے یہ قانون تھا کہ کیسر کے اسٹیچو کے آگے سجدہ کیا جائے، اس کے آگے قربانی چڑھائی جائے، اس کے آگے نذرانے پیش کیے جائیں. اور یہ نذرانے جو روپے پیسے کی صورت میں ہوتے تھے ان کو جمع کیا جاتا تھا. اور تمام جتنے نذرانے تھے جمع ہو کر یہ ٹیکس کی صورت میں روم میں بادشاہ کے پاس پہنچتے تھے. یہ ان کا کمائی کا ذریعہ بھی تھا اور پرستش کرنے کا انداز بھی تھا. تو پرگمن میں ایک کلیسیا قائم تھی. اس کلیسیا نے اعلان کیا کہ ہم بادشاہ کا اسٹیچو ہو یا شفا دینے کی دیوی کا مندر ہو یا دانش و فہم کا کوئی دیوتا ہو یا مے نوشی کا دیوتا ہو، کوئی بھی دیوی دیوتا ہو، ہم اسے سجدہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. خواہ سر کٹ جائے، خواہ جان چلی جائے، خواہ قتل کر دیے جائیں، خواہ آگ کی جلدی بھٹی میں پھینک دیے جائیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. اور یہ کلیسیا سمرنا شہر میں، یہ پرگمن شہر میں جو کلیسیا قائم تھی، یہ یوں سمجھے کہ شیطان کی سکونت گاہ میں قائم تھی. وہاں شیطان کا ہیڈ کوارٹر تھا. سارے مندر وہاں تھے اور رومی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی. اور یہ کلیسیا اس شہر میں قائم تھی. سنیے غور سے. پھر کیسر کو سجدہ کرنا حکم تھا. اب سنیے جو ہم نے 12ویں آیت پڑھی ہے، وہاں لکھا ہے اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ. پرگمن کی کلیسیا، تو کلیسیا یہاں پہ قائم تھی. اب پرگمن کے بارے میں ایک اور بات. پرگمن جو شہر تھا افسس سے کوئی 40 کلومیٹر شمال کی طرف تھا. افسس کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہو تو پولس رسول کے دوسرے سفر میں اعمال کی کتاب میں 16، 17، 18 باب پڑھیں. پولس رسول نے افسس میں 2 سال رہ کر خدمت کی تھی. اور یہ پرگمن جو ہے افسس سے کوئی 40 کلومیٹر تھا اور باقی کلیسیاں بھی تقریباً 40-60 کلومیٹر کے فاصلے پہ قائم تھی. تو علماء کا خیال ہے
کہ شاید پرگمن کی کلیسیا بھی اس وقت قائم ہوئی تھی جب افسس میں پالوس نے کلیسیا قائم کی تھی دوسرے سفر میں، اور وہاں جو لکھا ہے کہ وہ موسیا سے گزرنے کے بعد جب وہ آسیا کو جانے لگے تو خداوند نے کہا ابھی نہیں، وہاں جانے سے روکا۔ تو خیال کیا جاتا ہے کہ بعد ازاں یہاں پر پالوس رسول نے جا کر کلیسیا قائم کی تھی، لیکن اگر ہمیں یہ یاد نہ بھی ہو، ہمیں معلوم نہ بھی ہو کہ یہ پالوس نے قائم کی یا پطرس نے یا یوحنا نے، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں یہ یاد ہے کہ کلیسیا کا بنانے والا، کلیسیا کا بلڈر، کلیسیا کا پلانٹر، کلیسیا کا بانی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ متی کی انجیل 16 باب میں یسوع نے للکار کے کہا تھا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، I will build my church۔ اس نے شاگردوں سے کہا تھا، جب شاگردوں سے بات کر رہا تھا تو پطرس سے مخاطب تھا اور کہا پطرس تو ایک چھوٹا سا پتھر ہے لیکن میں اپنی کلیسیا چٹان پہ بناؤں گا، I will build my church، میں بناؤں گا۔ تو اس کا مطلب کلیسیا کا بنانے والا کا ادھر پاسٹر ریاض نے محنت کی ہو کلیسیا بنانے کے لیے، کہیں اور کسی اور نے کی ہو، پاسٹر کامران نے کی ہو، یا کیسر صاحب نے کی ہو، یا پروفیسر صاحب، کسی نے بھی محنت کی ہو، لیکن اصل کلیسیا کا بانی، کلیسیا کا آتھر، کلیسیا کا فاؤنڈر، جس کی بنیاد پہ کلیسیا قائم ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور وہی 7 کلیسیاؤں کا بانی ہے، اس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، اس کا مطلب کلیسیاؤں کے پاسٹر اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی سونے کے 7 چراغدانوں کے بیچ میں پھرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سونے کے 7 چراغدان 7 کلیسیائیں ہیں، وہ 7 کلیسیاؤں کے درمیان میں پھرتا ہے، ہر ایک کلیسیا کے بارے میں جانتا ہے، یہ افسس کی کلیسیا ہے، یہ سمرنا ہے، اور یہ پرگمن ہے، یہ تھواتیرا ہے، یہ لودیکیا ہے، یہ فلدلفیا ہے۔ خداوند جانتا ہے ایک ایک کلیسیا کے بارے میں، وہ پھرتا ہے، وہ گھومتا ہے، کیونکہ مالک ہے، کیونکہ خالق ہے، اس نے کلیسیا کو بنایا ہے، وہ کلیسیا کا دولہا ہے، اسے فکر ہے، وہ لینے کے لیے آنے والا ہے۔ کلیسیا یسوع مسیح کی دلہن ہے، کون سا دولہا ایسا ہے جسے اپنی دلہن کی فکر نہ ہو؟ وہ کلیسیا کے درمیان پھرتا ہے۔ بولیے ہاللیلویہ۔ تو یسوع نے کہا پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، فرشتہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، دوبارہ بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہاں پہ ہے میسنجر، کلیسیا میں جو پیغام دینے والا ہے پاسٹر، اس کو یہ لکھ۔ اب ذرا غور سے سنیے، اگر یہ توجہ سے سنیے، آپ کو کلیسیا کے کسی ممبر سے کوئی شکایت ہو تو براہ راست اس سے بات کرنے کی بجائے پاسٹر سے کہیں، پاسٹر سے بات کریں۔ اگر کلیسیا سے متعلق بات ہے تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو کلیسیا کا پاسوان ہے اس سے بات کریں، اور اگر یسوع مسیح کو پرگمن کی کلیسیا کے کسی بھی ممبر سے شکایت ہے تو وہ خط جو ہے پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھا جا رہا ہے، اس کے پاسوان کو لکھا جا رہا ہے، اس کے میسنجر کو لکھا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے تھی میری بات؟ پس پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ۔ اب کیا لکھا ہے غور سے سنیے، لکھا ہے 12 آیت، پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ یسوع نے پہلے اپنا تعارف کروایا، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے ہاتھ میں 2 دھاری تیز تلوار ہے، ڈبل ایج سوڈ ہے۔ یہ کیسی تلوار ہے؟ تلوار عموماً ایک سائڈ سے کاٹتی ہے، لیکن یہ خنجر کی طرح 2 سائڈ سے کاٹنے والی، 2 دھاری اور تیز بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ تلوار تو ہے لیکن تیز نہ ہو، 2 دھاری تیز تلوار جس کے ہاتھ میں ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پرگمن کو بتا دیا کہ اے پرگمن کی کلیسیا گھبرانا نہیں، وہ جس کے ہاتھ میں 2 دھاری تیز تلوار ہے جو دونوں طرف سے کاٹتی ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں 2 دھاری تیز تلوار ہے۔ یہ تلوار جو ہے عموماً کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے،
कद्दुगारत करने के लिए मानी में इस्तेमाल होती है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तलवार चलाने नहीं, मैं अमन और सुलह लेकर आया हूं। और सुलह क्या थी? सुलह यह है कि वो बलिनो इंसान की मुलाकात अपने बाप से करवाता है और कहता है कोई मेरे वसीले के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। तो ये कौन सी तलवार है? ये तलवार कौन सी है जो उसके पास है? ये तलवार, धोधारी तेज तलवार, ये खुदा का कलाम है। हालेलुया, सब हालेलुया, ये खुदा का कलाम है। और अभी मैडम ने जो आयत आपके सामने दोहराई, आप सामने मिलकर, वो है यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत। इब्तिदा में, बोलिए आगे, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें इसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। इसका मतलब है यीशु मसीह कलमाए खुदा है, यीशु मसीह कलामे खुदा है, यीशु मसीह द वर्ड ऑफ गॉड है, यीशु मसीह खुद एक कलाम है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह कलाम है और कलाम मुजस्सम हुआ, यीशु मसीह की सूरत में कलाम मुजस्सम हुआ। लेकिन ये दो धारी तेज तलवार जो है, ये खुदा का तहरीरी कलाम है, यह खुदा का लिखा हुआ कलाम है जो आज हमारे हाथ में है। 66 किताबें, 39 किताबें ओल्ड टेस्टमेंट में, 27 किताबें न्यू टेस्टमेंट में। ये 66 किताबों का मजमूआ एक धोधारी तेज तलवार है जो बंद बंद और गुदे गुदे को काट जाती है, जो दिलों और इरादों को जांचती है, जिसमें हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल के हल मौजूद है, हमारी जरूरत का हल मौजूद है, हमारी हर बीमारी का इलाज मौजूद है, हमारे हर सवाल का जवाब मौजूद है। ये लाखदा है, ये गलतियों से पाक है, ये ला तब्दील है, ये तब्दील करने की कुदरत रखती है। खुदा का कलाम जिंदा धोधारी तेज तलवार की मानद है। ये रोटी है, ये पानी है, ये शहद है, ये आईना है, ये चिराग है, ये रोशनी है, ये चांद की मानद चमकता है, सूरज की मानद चमकता है और दिलों को चमका देता है। समझे हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का कलाम धोधारी तेज तलवार है। आइए मेरे साथ पढ़िए जरा इब्रानियों के नाम, उसका चौथा बाब 12वीं और 13वीं आयत। इब्रानियों के नाम का खात, उसका चौथा बाब 12वीं और 13वीं 2 आयत हम पढ़ेंगे कि खुदा का कलाम क्या है। लिखा है 12वीं आयत, इब्रानियों चौथा बाब 12वीं आयत, क्योंकि खुदा का कलाम, अगर आपके पास बाइबल है मेरे साथ मिलकर बोले, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा, कठिन बोले, और मुअस्सर और हर एक धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। हालेलुया, सब तालियां बजाइए खुदा के कलाम के लिए। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिलों के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। तो उसके मुंह में जो खुदा के हाथ में एक दो धारी तेज तलवार है, ये खुदा का कलाम है जो तसल्ली देता है, जो इत्मीनान देता है, जो सलामती देता है, जो हौसला अफजाई करता है, जो पुष्ट बनाई करता है, जो ढालस बनाता है। हालेलुया। और खुदा अपना कलाम नाज़िल करके सबकी ज़रूरियात को पूरा करता है। और ये कलाम, बेशुमार लोगों ने कोशिश की कि ये कलाम जो है इस दुनिया से मिट जाए, ये कलाम तहरीरी तौर से हमारे हाथ में ना आए। बेशुमार लोगों ने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ये कलाम आज हमारे हाथों में पाया जाता है और दुनिया की तकरीबन हर बड़ी ज़बान में, बल्कि अब तो छोटी ज़बानों में भी इसका तर्जुमा मौजूद है। आपके फोन में अगर आप डाउनलोड करना चाहें इंटरनेट से तो कर सकते हैं। आप आपके फोन में बाइबल के 4 से 3 वर्जन आप पढ़ सकते हैं। उर्दू में बाइबल आपके फोन में मौजूद है। इंटरनेट पे आप जाइए, आपको बाइबल ऑडियो में मिलेगी, आप सुन सकते हैं। खुदा का कलाम जिंदा है, दिलों को बदलता है और पूरी दुनिया में इसमें काम हो रहा है। हालेलुया। और खुदावन इसका मालिक है। फिर आगे क्या लिखा है? ये तारुफ था यीशु मसीह का, और तारुफ परगमन को ये तारुफ क्यों करवाया? फिर सुने, परगमन की कलीसिया को तारुफ क्या करवाया? क्या तारुफ कराया यीशु ने अपना? वो
बोले जिसके हाथ में दो धारी तेज तलवार है। परगमन की कलीसिया को यह तारीफ नहीं करवाया। दरअसल परगमन की कलीसिया मुसीबतों में से गुजर रही थी। शैतान की सुकूनत वहां थी। रोम का यह हेडक्वार्टर था। यहां देवी देवताओं की प्रस्तिश होती थी और लोगों ने बहुत से अपने माबूद बना लिए थे। कैसर की प्रस्तिश होती थी और कलीसिया हमेशा सदर मिस्र और अबदनजू की तरह एलानिया कहती थी कि बादशाह सुन ले, हम तेरे स्टैचू को, तेरे मुजस्समे को सजदा नहीं करेंगे, हम कुर्बानियां नहीं चढ़ाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। इसलिए यीशु ने तारुफ कराया कि फिक्र ना कर परगमन, मेरे हाथ में दो धारी तेज तलवार है। तू तलवार को लेकर, इस कलाम को लेकर बोले चला जा, बोले चला जा, चला जा। कलाम सुनाने से बाज ना। और जैसे पौलुस कहता है कि मैं खुदा के कलाम को पेश करने से शर्माता नहीं, वो लिखता है मैं इंजील से शर्माता नहीं, मत शर्मा, बोले चला जा, सुनाए चला जा। और एक दिन ऐसा आएगा परगमन में एक बेदारी आएगी और लोग यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे। हालेलुया, बोले चले जा, मैं किताब मुकद्दस का मालिक हूं। और आगे क्या लिखा है? इसी हम मुकाशवा में से दूसरे बाब में से गौर कर रहे हैं। मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब 13वीं आयत। आगे लिखा है मैं ये तो जानता हूं। यीशु कहते हैं आई नो, मैं ये जानता हूं। जरा मेरी तरफ देखिए साहब, अगर आपसे कोई ये कहे कि मैं जानता हूं आपके बारे में, तो आप हैरान होंगे मेरे बारे में ये शख्स कैसे जानता है। और शायद वो शख्स जो कह रहा है कि मैं जानता हूं आपके बारे में, वो जानता ना भी हो, झूठ बोलता हो। लेकिन यीशु मसीह परगमन की कलीसिया से कहता है मैं ये जानता हूं। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह अल-मुल गैब है, वो अलीम व बसीर है, वो बंद और बुदे बुदे में से ख्यालात को परख लेता है, हमारी सोच से वाकिफ है। अभी हम अपने किसी बात को सोच ही रहे होते हैं, उसे मालूम होता है कि क्या कुछ कहा जा रहा है। जैसे 4 आदमी एक मफलूज को उठा के लेके आए और जब मफलूज को यीशु के पास उतारा गया, यीशु ने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। लोग सोचने लगे अपने ज़हनों में कि ये कैसा शख्स है जो गुनाह को माफ करता है। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने ये मालूम करके कि ये क्या सोच रहे हैं, ये कहा कि मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है। यीशु जानता है कि कोई क्या सोच रहा है और यीशु कहता है मैं जानता हूं। यीशु क्या कहता है? बोलिए क्या कहता है? मैं जानता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कलीसिया, मेरी बहनों मेरे भाइयों, गौर से सुनिए। यीशु आपसे कह रहा है मैं जानता हूं। कितना छुप के गुनाह करेंगे, कितना किससे छुप के गुनाह करेंगे, वो जानता है। उससे कुछ भी पोशीदा नहीं। उसकी आंखें सारी जमीन पे फिरती हैं और वो सातों कलीसियाओं के दरमियान में 7 सोने के चिरागदानों में फिरता है। कैसे छुपाएंगे उससे? उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उससे कुछ छिपा नहीं सकते। कितना गुनाह, कौन सी बदी आप करते हैं या नहीं करते, खुदा जानता है। आप हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, खुदा जानते हैं कि पढ़ते हैं कि नहीं। आप हर रोज दुआई हालत में रहते हैं, खुदा यीशु मसीह जानता है कि आप किस हालत में रहते हैं। आप दुआई मीटिंग में आते हैं, आप संडे को चर्च आते हैं, आप दायिकी देते हैं, आप खुदा के कलाम के अहकाम पर अमल करते हैं, बाइबल की तालीम से दाएं बाएं नहीं मुड़ते। खुदा यीशु मसीह जानता है। आप छुपा नहीं सकते, उससे कुछ भी पोशीदा नहीं है क्योंकि वो अल-मुल गैब है। हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं ये जानता हूं। बहन भाइयों, यीशु आपके बारे में जानता है। अगर आप मुसीबत में हैं वो जानता है, अगर आप दुख में वो जानता है, अगर आप खुशी में वो जानता है, अगर बदी में वो जानता है, अगर तौबा करके गुमराह हो गए वो जानता है, अगर
अगर आप तौबा के मुआफिक फल नहीं ला रहे, ढीले पड़ गए हैं, मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, सुस्त हो गए हैं, वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है। He knows, वो जानता है। कहिए वो मुझे देखता है, वो मुझे जानता है। बोलिए वो मुझे देखता है, बोलिए वो मुझे देखता है, वो मेरे बारे में जानता है। परगमुन की कलीसिया के फरिश्ते को ये देख कि जिसके हाथ में दो धारी तेज तलवार है, वो ये फरमाता है, मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है। परगमुन शैतान की तख्तगाह था। जैसे मैंने जियोस देवते का बताया, देवता का, कि उसे तमाम देवी देवताओं का बाप माना जाता था, और कैसर जो कि पूरी दुनिया में हुकूमत करता था, उसके स्टैच्यू वहां पे थे। तो खुदावंद यीशु कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत करता है, यानी परगमुन शहर जहां पे आबाद है वहां शैतान का हेडक्वार्टर है, और पूरी दुनिया के हर शहर में शैतान का कोई ना कोई चेला, उसकी कोई ना कोई बदरू हुकूमत करती है। शैतान उसने अपने बकायदा दायरा इख्तियार बनाया है, उसका एक सिस्टम है, उसकी बदरू है, उसके कारकुन पूरी दुनिया में काम करते हैं। लेकिन परगमुन में शैतान का अपना तख्त लगा हुआ था, और उसने कहा मैं जानता हूं तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत करता है, मैं जानता हूं तू कहां रहता है, मत घबरा, शैतान मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया। घबरा नहीं परगमुन की कलीसिया, तुझे बता देना चाहता हूं मैंने सलीब पे शैतान को शिकस्त दे दिया है। बता देना चाहता हूं ए परगमुन की कलीसिया, ए गुड न्यूज़ कलीसिया, ए लाहौर की कलीसिया, पाकिस्तान की कलीसिया, ए आलमगीर कलीसिया, तुझे बता देना चाहता हूं शैतान शिकस्त खुर्दा है, वो सिर्फ पर फड़फड़ा रहा है। जैसे मुर्गी को ज़िबा करने के बाद थोड़ी देर तक वो तड़पती रहती है, उसके शैतान पे छुरी रख दी गई है, वो तड़प रहा है, और वो जानता है कि उसका थोड़ा सा टाइम बाकी है, वो जानता है उसकी थोड़ी सी मुद्दत बाकी है, इसलिए बड़ी तेजी से काम कर रहा है, ओवर टाइम काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, दिन रात वो काम करता है ताकि लोगों को बिगाड़े, ताकि गुनाह को आम करे, बदी को आम करे, कलीसिया को परेशान करे। शैतान का थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन याद रखें शैतान सलीब पर शिकस्त खा चुका है। क्या कहा था बाग़ एदन में शैतान के बारे में? कहा था कि खुदा ने कहा हवा से कि तुझ में से एक शख्स निकलेगा जो शैतान के सर को कुचलेगा। बोले हालेलुया, बधाई तालियां यीशु मसीह के लिए। तुझ में से एक शख्स निकलेगा जो शैतान के सर को कुचलेगा। और यीशु मसीह ने पढ़िए कुलसियों के खत में दूसरे बाब में, उसने सलीब के सबब से शादियाना बजाया अबीसी कुव्वतों का, उन्हें कुचल के रख दिया। और यही नहीं, शिकस्त खुर्दा इंसान फड़फड़ा रहा है, ओवर टाइम काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास इख्तियार है। क्या कहा? जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में जो शैतान है, इसका एक और नाम भी है, पता है इसका नाम? इस जहान का खुदा। ये सिर्फ इस दुनिया का खुदा है, लेकिन हम जिसे मानते हैं वो आसमान और जमीन, बल्कि तमाम कायनात और यूनिवर्स का मालिक है, खालिक है, परवरदिगार है, यहोवा खुदा है, यावे गॉड है, और वो खालिक है, यहोवा एलोहीम खुदा है। लेकिन ये शैतान, इसने जहान की आंखों को पट्टी बांध रखी है, और जहां चाहता है, जैसे बंदर वाला बंदर के नाक में नकेल डाल के उसे नचाता है, शैतान आज गुनहगार को नचा रहा है, क्योंकि अकेला जहन्नम में नहीं जाना चाहता, और वो चाहता है कि कुछ को साथ लेकर जहन्नम में जाए। लेकिन याद रखिए शैतान के बारे में, वो जो कि आज तख्त लगाए बैठा है, शैतान के बारे में सुन ले, उसका फ्यूचर आपको बता दूं। सुनना चाहते हैं शैतान का फ्यूचर? जहन्नम उसके लिए तैयार हो चुका है, जहन्नम उसके लिए तैयार हो चुका है। जहन्नम आग की जलती भट्टी इंसानों के लिए नहीं है। हाँ, वो इंसान जो गुनाह करते हैं, शैतान का साथ देते हैं, वो खुद ये चूज करते हैं कि जहन्नम में जाएं, लेकिन जहन्नम शैतान के लिए बनाया गया है। क्योंकि मत्ती की इंजील 25 बाब में लिखा है
यीशु मसीह जब तख्त अदालत पे होगा, भेड़ें बकरियां उसके सामने होंगी। बकरियों से मुराद है वो जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, जिन्होंने यीशु की तालीम को रद्द किया, जिन्होंने कलीसिया की तालीम को रद्द किया। दोधारी तेज तलवार से बच निकले, कलाम से जो आरी हैं, कलाम से जो दुश्मनी रखते हैं, उनसे बदला लेगा। और वो क्या कहेगा? सुनी क्या कहेगा? ऐ बनाओ, ऐ बनाओ, उस जहन्नम में चले जा, आग की जलती भट्टी में चले जा, जो शैतान और उसकी बुजुर्गों के लिए तैयार किया गया। जहन्नम किसके लिए तैयार किया गया? बोलिए, किसके लिए तैयार किया गया? लेकिन शैतान बड़ा शरारती है, शैतान बड़ा शैतान है। वो अकेला नहीं जाना चाहता, वो चाहता है 2-4 को लेके साथ जाए। जहन्नम उसके लिए तैयार हुआ है, लेकिन बहुत से लोग उसके पीछे चले हैं, क्योंकि ये रास्ता खुला है जो जहन्नम की तरफ जाता है, और वो रास्ता तंग है जो आसमान की तरफ जाता है। ये शैतान जो है, इसका खात्मा एक तो 1000 साल सल्तनत में होगा, जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ आसमान पे जाएगा। वहां से कलीसिया जब वापस आएगी जमीन पे, यरूशलेम में यीशु का पाया तख्त होगा, मिलीनियम होगा, 1000 साल सल्तनत होगी, शैतान बांध दिया जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा, और उसके बाद उसकी अदालत होगी, और फिर वो हमेशा के लिए अपनी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में? मुकाशवा 20वां बाब निकालिए, मुकाशवा 20वां बाब। यहां आपको शैतान का फ्यूचर दिखाना चाहता हूं। शैतान का फ्यूचर क्या है? 20वां बाब उसकी 12वीं है। यहां लिखा है, 11वीं से पढ़ लेते हैं। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। और 12वीं है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उनमें किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमान के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के ईमान के मुताबिक उसका इंसाफ किया गया। और 4वीं आयत, फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, आग की झील में डाले गए, अभी उसमें डाला गया जहां हमेशा का रोना और तड़पना है। ये शैतान का फ्यूचर है। जी आइए वापस मुकाशवा 2वां बाब, जहां से हम चल रहे थे, और मैंने कहा कि हम आयत चलेंगे 13वीं आयत। मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की सुकूनतगाह में, तख्तगाह में सुकूनत करता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। होल्ड कीजिए, ये बच्चों को उठा दें प्लीज, बच्चों को उठा दें, कंट्रोल करें, माइंड प्लीज कंट्रोल करें। परगमन की कलीसिया की तारीफ यीशु मसीह करता है। पहली तारीफ करते हुए क्या कहा? मैं ये तो जानता हूं, क्या जानता हूं? कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत करता है। मत घबरा, शैतान का खात्मा होगा। दूसरी बात क्या है? ये भी जानता हूं कि तू मेरे नाम पर कायम रहता है। कितनी बड़ी बात है। परगमन की कलीसिया को कहा गया, मैं ये जानता हूं कि तू हालांकि शैतान की तख्तगाह पे है, वहां कायम है जहां पे शैतान रहता है, फिर भी तू मेरे नाम पे कायम है। यीशु नाम, यूसुफ को क्या नाम मिला था? मत्ती की इंजील 1 बाब 21 आयत, तू उसका नाम यीशु रखना। क्या लिखा है? तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाह से पाक करेगा, उनके गुनाहों से आजाद करेगा, छुटकारा देगा, निजात देगा। तो यीशु नाम का मतलब है गुनाह से छुटकारा देने वाला। यीशु नाम का क्या मतलब है? गुनाह से आजाद करने वाला। यीशु नाम में गुनाहों की खलासी है। यीशु नाम से खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। यीशु ने कहा, अगर मेरे नाम से मेरे बाप से कुछ मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
यीशु नाम सब नामों से अफजल नाम है। दुनिया में बहुत से माबूद हैं, दुनिया के सारे माबूद, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं। ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना वो दुआओं का जवाब देते हैं, लेकिन शुक्र है हम जिंदा यीशु को मानते हैं, जो जिंदा है, जिसकी कब्र खाली है, जो आज भी जिंदा है, जो जिंदा होकर इसने कहा देखना मर गया था और जिंदा हूँ और फिर नहीं मरेगा। हालेलुया, वो जिंदा है। तो लिखा है तू यीशु नाम पे कायम रहता है। यीशु नाम सब नामों से अफजल। फिर दूसरा बात पहली याद से पढ़ना शुरू करें। आगे लिखा है खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके। करने कितनी अकड़ करेंगे, करने कितना वो ढीठपन दिखाएंगे, करने जितना मर्जी मजाक खुदा यीशु मसीह के नाम का, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। जब यीशु मसीह अदालत करने आएगा, लोग चलाएंगे पहाड़ों हम पे गिर पड़ो, हमें बल्ला के गजब से चला लो। आज इनकार करते लेकिन कल चलाएंगे, आज इनकार करते कल रोएंगे, कल छाती पीटेंगे, चलाएंगे और कहेंगे इस बला से बचा लो। यीशु नाम सबसे अफजल नाम है। हालेलुया, यीशु के नाम में निजात है, यीशु के नाम में शिफा है, यीशु के नाम में दुआओं का जवाब है, यीशु के नाम से बदरुएं भागती हैं, यीशु के नाम से हालेलुया, यीशु के नाम से शैतान काम जाता है, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत है। पतरस ने जो पहला मौजज़ा किया यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद, कलीसिया का पहला मौजज़ा, पतरस ने लंगड़े से कहा, जन्म के लंगड़ा था, क्या कहा? सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, मैं तुझे हुक्म देता हूँ। किसके नाम से? मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, उठा चल दे। और लंगड़ा भागने लगा, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत है, क्योंकि यीशु के नाम में शिफा है। हालेलुया। और दिमाग शिफा खाली नहीं, मुर्दे जिंदा होते हैं, बहुत से मुर्दे इन दिनों में भी जिंदा होते हैं यीशु के नाम से। और सबसे बढ़कर जिस्मानी मुर्दे तो होते ही हैं, रूहानी मुर्दे जो गुनाह में पड़े हुए हैं, यीशु नाम कुदरत वाला नाम, यहोवा नाम जो निजात देने वाला नाम है, उससे आजाद होते हैं। लिखा है तू मेरे नाम पर कायम रहता है। बड़ी तारीफ की बात है। यूना की इंजील 15वां बाब, वहां लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा कायम। परगमन की कलीसिया को कहा, मैं जानता हूं कि हालांकि शैतान की सुकूनत गाह जो है वहां तो सुकूनत करता है, उसके बावजूद तू मेरे नाम पर कायम है, मेरे नाम से तूने इनकार नहीं किया। हालेलुया। और जो जमीन पर यीशु मसीह का इनकार नहीं करते, आसमान पे गुलाम यीशु मसीह उनका इकरार करेगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। परगमन में क्या होता था, स्मरना में क्या होता था, इफिसस में क्या होता था? जब मसीहों को पकड़ा जाता था, गिरफ्तार किया जाता था, उन्हें कहा जाता था कि वो ऐलान करें मैं यीशु नाम का इनकार करता हूं, कहा जाता था। बल्कि यहां तक कहा जाता था कि वो यीशु मसीह के नाम पर लानत करें। लेकिन कलीसिया, परगमन की कलीसिया, सवातीरा की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया और इफिसस की कलीसिया और आज की कलीसिया, सदर मिस्र का बदलजू की तरह आज की कलीसिया वो खड़े होकर कहती है कि हम यीशु नाम के ऊपर कायम रहेंगे, खा सर कट जाए। हालेलुया। फिर बोलिए, असा यीशु का दोबारा नहीं छड़ना, ज़माने आज़मा के देख ले। आगे मैं आपको आगे सुनाता हूं। असा यीशु दा दोबारा नहीं छड़ना, ज़माने आज़मा के देख ले। पूरा कराने जो बोल मुंह कढ़ना, ज़माने आज़मा के देख ले। सिर देना जे पावेगा, सिर देवांगे, हक सच दी सच्चाई उते रवांगे। पर यीशु दा ने प्यारा नाम छड़ना, ज़माने
आसमां के वेखले। परगमन की कलीसिया यीशु के नाम पे कायम थी। आपका क्या हाल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज कोई मुसीबत आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज शैतान की कोई कुव्वत ऐसी अटैक करे कि आप यीशु के नाम का इनकार कर दें। मैंने बहुत सी कहानियां पढ़ी, इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ी। एक शख्स के बारे में मैंने सुना जिसको कहा गया कि तेरे बेटे को, पहली सदी ईस्वी का वाकया है, इब्तदाई कलीसिया के बाद पहली सदी में, उसे कहा तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने उठाकर 100 से जमीन के ऊपर पटक दिया जाएगा अगर यीशु नाम का तो इनकार नहीं करेगा। उसने कहा मैं यीशु नाम का इनकार नहीं करूंगा, मैं यीशु नाम पे कायम रहूंगा, यीशु नाम को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसके देखते देखते उन्होंने उसके बेटे को धड़ाम से जमीन के ऊपर पटक दिया, लेकिन उसने यीशु का इनकार नहीं किया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और आगे लिखा है तू मेरे नाम पे कायम है, कायम रहता है। और जब आगे लिखा आगे कि जब इंतबास शहीद हुआ उस वक्त भी तूने अपना दिल छोटा नहीं किया, उस वक्त भी तूने हिम्मत नहीं हारी जब इंतबास शहीद हुआ। इंतबास के बारे में मैं पढ़ रहा था, हिस्ट्री इसके बारे में खामोश है, लेकिन ये सच है। अगर यीशु मसीह ये कह रहा है तो ये सच है। मेरी बात सुनिए, अगर कुछ यीशु कहे तो वो सच होगा तो झूठ होगा? सच हो। तो जब यीशु कह रहे हैं मैं जानता हूं परगमन की कलीसिया जब इंतबास शहीद हुआ उस वक्त भी तुम मेरे नाम पे कायम रहे और तुमने ईमान को नहीं छोड़ा। इंतबास के बारे में मैंने पढ़ा कि उसने ऐलानिया इकरार किया कि मैं देवी देवताओं का इनकार करता हूं और यीशु मसीह के नाम का ऐलान करता हूं। मैं यीशु मसीह को हर किस नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने ईमान को कभी तर्क नहीं करूंगा। मेरा ईमान ये है कि खुदा का कलाम ला तब्दील है, उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा ईमान है यीशु कुमारी मरियम से पैदा हुआ, मैं मानता हूं कि वो कुमारी मरियम से पैदा हुआ, वो हुआ, दफन हुआ, जी उठा, आसमान पे है, वापस आने वाला है, कलीसिया में सुन्नत करता है, तौबा की तालीम को मानता हूं, बपतिस्मे को मानता हूं, रूह की तालीम को मानता हूं, 1000 साल सल्तनत को मानता हूं। जिन दिनों में इंतबास ने ईमान का इकरार किया, उसे शहीद किया गया, उस दिन भी तू कायम रहा। शाबाश परगमन की कलीसिया, तुम्हें हिम्मत नहीं हारी। और इसके बारे में मैंने पढ़ा कि इसे एक जैसे कबाब आग के ऊपर रखे जाते हैं, बहुत बड़ी आग जलाई गई और उसे आग के ऊपर भून दिया गया, जला के राख कर दिया गया, लेकिन जो ही उसे आग के ऊपर डाला उसकी रूह खुदावंद के पास चली गई। जिस्म की क्या बात है, जिस्म की क्या बात है, उसे भून डाला गया, लेकिन परगमन की कलीसिया इन सारे वाकया के बावजूद कायम रही। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपसे कहना चाहता हूं, वादा करें यीशु नाम को छोड़ के कहीं नहीं जाने, क्योंकि यीशु नाम में बरकत है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। एक गीत हम अक्सर गाया करते थे, आजकल कम गाते हैं, और वो गीत ये है, यीशु तेरे बिन और को सजदा ना करेंगे। कोशिश करें गाने की। यीशु तेरे बिन और को सजदा ना करेंगे। इस बात से दिया भा सकते हैं आप। यीशु तेरे बिन और को सजदा ना करेंगे, तुम सहेंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे, दुख सहेंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, वादा करें परगमन की कलीसिया की तरफ आपका